Now, ma'am, to present a beautiful gift for her worthy is as Certified Youth Personality Development Trainer. She is not only a 3-time TEDx speaker but also a distinguished UN speaker, sharing her insights and wisdom on global platforms. In recognition of her outstanding contribution, she was nominated for the prestigious Padma Shri Award in 2023. A huge round of applause for her. Her achievements have also been acknowledged by the London Book of World Records, further solidifying her impact and influence. Ms. Swerleen's passion for empowering individuals led her to establish the Talk Room, focusing on developing self-assured individuals with strong interpersonal and intrapersonal skills. She is also the course leader for Start Your Startups at UPES Dehradun. She serves as an advisory board member at the Indo-Canadian Education Council and has delivered over 1,000 sessions on personality development, effective communication, and startup ecosystems, indicating being featured on the cover page of the magazine Spreadsheet Vista and more than 100 articles by print media such as Times of India. Ma'am has also been a consultant for GRD College, a personality development coach consultant for Shivalik College of Engineering, and an external examiner for Graphics Era Hill University. Additionally, she is a mentor at Balika Vidyalaya National NGO and a personality development coach at DOF Foundation NGO. Her leadership qualities are evident as she serves as the education coordinator at BNI Uttarakhand and secretary at TIE Dehradun. Ms. Swerleen Kaur is a pathbreaker in the field dedicated to enhancing the personalities of millions and making a positive impact through her work in education, coaching, and consulting. Welcome, ma'am. I think I'm really sorry. There is such a long list of your achievements. So now I invite you to please encourage and enlighten our students. Good morning, everybody. Good morning, ma'am. अच्छा पहले तो ये शर्मा बता देते तो long list वाली achievements भूल जाओ. I'm one of you, right? Today we are going to deliver like I am one of you. Actually, I was one of you, right? I also belong to this city. And यही बैठी होती थी मैं भी कहती. So, मुझे ना आज आपसे बातचीत करनी है, no lecturing. Are we okay with this? Yes. ठीक है. How are we okay? English, Hindi, mix क्या करें? बताओ. ठीक है. तो अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ. अभी हम दोस्त हैं, right? Because अभी जो मैं आपको बताने वाली हूँ, it has nothing to do with कि मैंने इतना बड़ा कर दिया और आप नहीं कर सकते. Today we are going to find out what you can do. आप if you participate with me, ठीक है? लेक्चर शुरू होने से पहले पानी पीना जरूरी होता है. ये बॉटल सबने देखी है, राइट? कौन सा ब्रांड है? सब पानी पीते हैं बिस्लरी का. और कोई ब्रांड आता है बिस्लरी के अलावा? किनले. किनले. और कोई? हिमालय. जल. जल. सोचना पड़ रहा है ना? I mean we want to think. लेकिन अगर यहाँ पर बिस्लरी ना लिखा होता और मैं आपको जस्ट ये बॉटल दिखाती, क्या आप पहचान जाते कि ये बिस्लरी है? Or maybe just this green labeling, the kind of bottle it is. कभी ऐसा सोचा है कि बिस्लरी का ही पानी पीना है, हिमालय का नहीं पीना, या एक और वेद का आता है, there's a lot of brands. ऐसा होता है कि बिस्लरी पीते हैं, बेटर है, प्योर है, क्वालिटी बेटर है, ऐसा होता है? At times कुछ products में होता है. Absolutely. कोक की बॉटल देखो, कोक की बॉटल खाली भी होगी, टैग भी उतरा होगा, सिर्फ कैप से, बॉटल की शेप से you will get to know it is Coke bottle, right? So क्या क्या इन ब्रांड्स ने? ये ब्रांड बन गए, right? And how they made themselves a brand, whether it is Bisleri or Coke or
certain other products that we'll be talking about today. Because they achieved being there. You know, the goal of being there. और उन्होंने हर चीज को, कोका कोला की बॉटल का जो कैप है ना, वो भी पेटेंट है उनका. The logo is a patent, right? I'm going to talk about, so I'll not confuse you in the beginning. Today I'm going to talk about achieving the solution fit and product market fit, right? मान लीजिए मेरे पास एक पेन है. Will you be taking it? 10 रुपए का पेन था, मैम तो कह रही है 2 रुपए में ले लो. Will you take it from me? खरीदोगे आप लोग मुझसे? Yes या no? Yes वाले कितने लोग हैं कि हाँ 2 रुपए में मिल रहा है 10 रुपए का पेन तो ले लेते हैं. कितने लोग लेना चाहोगे? Sorry? Exactly. मेरे घर पे ऑलरेडी 10 पेन पड़े, मुझे नहीं चाहिए तो मैं नहीं लूंगी ना. तो भी खरीद लेंगे आजकल. तो भी खरीद लेंगे क्योंकि शॉपिंग ऑनलाइन है, शॉपिंग ऑनलाइन. Obviously, a startup sees what is the need. ठीक है, हमें एक स्टार्टअप की डेफिनेशन पता है. स्टार्टअप होता क्या है? किसी इसको करना है तो एक स्टार्टअप लगाना पड़ेगा. ठीक है, कोई ऐसी क्वालिटी क्रिएटिव, ओके, कोई ऐसी क्वालिटी जो आपको लगता है एक स्टार्टअप में होनी चाहिए. प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए. Problem solving होनी चाहिए. I'm so happy that you all are answering this. Innovation, creativity. अच्छा, रेस्टोरेंट जाके खाना खाना किसको अच्छा लगता है? सबको. मुझे लगता है, मतलब मैं सबसे पहले हाथ खड़ा करती हूँ. I'm a big time foodie. तो सबको खाना अच्छा लगता है रेस्टोरेंट में. तो ऐसा हुआ कि जब ये स्टार्टअप कल्चर आया, रेस्टोरेंट्स तब बनने शुरू हुए. या पहले से ही थे. सालों साल से हम जब से पैदा हुए हम तो रेस्टोरेंट्स देख रहे हैं, राइट? बट ऑल ऑफ अ सडन क्या हुआ, ये रेस्टोरेंट कल्चर बढ़ गया. ठीक है, ऐसा हुआ. और उसमें एक कंपनी का बहुत बड़ा हाथ है. कौन सी कंपनी है वो पता है? Zomato. Yes. Zomato ने क्या किया? रेस्टोरेंट्स बनाए आकर? नहीं, रेस्टोरेंट्स तो थे ना. फिर भी Zomato इज अ स्टार्टअप. क्यों? क्योंकि एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री में जो डिसरप्शन लाया Zomato, वो कमाल था, राइट? आज हम सबके ऐप फोन्स में ऐप है Zomato, राइट? Zomato स्टार्ट कहाँ से? फाउंडर का नाम पता है किसी को Zomato के? Founder of Zomato? Mr. Chadda and Mr. Pankaj Chadda. Dipinder Goyal. Dipinder Goyal and Pankaj Chadda. Yes, and Dipinder Goyal belongs to a very small town in Punjab, Muktsar, right? कभी-कभी सैमर भी करते हैं बोलने में. Yet today it's a multi-million-dollar company. क्या किया Zomato? रेस्टोरेंट्स नहीं लाया. मैं बार-बार इस बात पे फोकस कर रही हूँ. बट रेस्टोरेंट्स की इंडस्ट्री में डिसरप्शन लाया. They started with a website. जैसे आप लोग तो शायद तो पैदा भी नहीं होंगे. हम लोग पहले ना डायरेक्टरीज में नाम ढूंढते थे. किसी का फोन नंबर ढूंढना होता था, इतनी मोटी डायरेक्टरी आती थी हर साल. दैट डायरेक्टरी, उसमें सबके नाम होते थे और फोन नंबर्स होते थे. ठीक है, क्योंकि पहले मोबाइल फोन्स नहीं होते थे, राइट? नाउ he created a directory of restaurants कि कौन सा खाना कहाँ अच्छा मिलता है मेन्यू कार्ड्स के साथ. People started visiting his website, right? अब वेबसाइट पे ट्रैक्शन आना तो शुरू हुआ, बट Zomato वहाँ रुक नहीं गया. उन्हें लगा कुछ ऐसा होना चाहिए कि हमारी सेल्स बढ़ जाए, तो एट द क्लिक लेट्स डू समथिंग. तो Zomato वेबसाइट से Zomato ऐप बन गई. Zomato ऐप बनी, डेफिनेटली द कस्टमर्स इंक्रीज मेनी फोल्ड. ठीक है, नीड थी ना मार्केट की. सबको लगता था कौन वेबसाइट पे जाए, फिर ढूंढो, फिर उसको प्रेस करो, फिर ऑर्डर करो, फिर अब लैपटॉप खोल के बैठेंगे, मोबाइल फ्रेंडली नहीं हो रहा है. सो दे क्रिएटेड एन ऐप. और ऐप से नेचुरली उनकी जो कस्टमर सेगमेंट था बहुत इंक्रीज हो गया, रीच ज्यादा हो गई. But did they stop there? No. Now let me give you an example. हम लोग सब अपनी बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करते हैं अपनी फ्रेंड्स के साथ, राइट? मैं भी अपनी टीम के साथ बहुत बार जाती हूँ. तो कई बार मेरी टीम कहती है, मैम देखो आज हमने ये अचीव किया,
आज हमें 5 CR की ग्रांट मिली, आज तो बढ़िया सी पार्टी चाहिए हमको। So मैं क्या करती हूँ, जोमेटो पे पहले ही डाइन इन ऑप्शन आता है ना, उस पर मैं बुक करती हूँ, जहाँ मुझे अच्छा फ्लैट 40-50% डिस्काउंट भी मिलता है। जो रेस्टोरेंट आपको 1% भी डिस्काउंट नहीं दे रहा, आज वो आपको 40-50% डिस्काउंट दे रहा है। एंड फिर टीम को बोलती हूँ मजे से खाओ। किसी ने यूज किया है क्या? Have you done this? Have you done this? So that dine-in option and was an added feature. Now 40-50% discount will they give you? Absolutely on pre-booking. What did it do? पूरी कहानी से आपको क्या पता चल रहा है? Zomato ने क्या किया? Zomato made our lives easier. Zomatos gave easiness to you and work to the restaurants. हर रेस्टोरेंट जोमेटो पे लिस्ट होना चाहता है, राइट? अभी लास्ट मंथ हो रही, आई वाज डिलीवरिंग अ फ्यू लेक्चर्स इन मुंबई एंड रात को मैं बहुत लेट हो गई, क्योंकि व्हेन यू गो आउट यू फील लाइक यार घूम लो, खाना तो होता रहेगा, और पता है कि जोमेटो है। सो व्हेन आई रीच माय रेस्टोरेंट तो मुझे लगा यार ये रेस्टोरेंट का खाना नहीं खाना, कुछ अच्छा खाते हैं, यहाँ की स्पेशलिटी। ट्रस्ट मी, मैंने आई वांटेड टू ईट दैट स्ट्रीट वड़ा पाव एंड ऑल। इतने ऑप्शंस आ गए और इतने डिस्काउंट्स के साथ। सो व्हाट डिड इट डू? 12 बजे भी मैं ऑर्डर मंगा रही हूँ तो मिल रहा है, एंड नाउ द होटल्स आर वेरी फ्रेंडली विद इट कि अच्छा मैम हम रिसेप्शन पे ले लेंगे, आपको भिजवा देंगे। हाउ इट मेड लाइफ, इट चेंज्ड द लाइफ, बट द एंटायर कॉन्सेप्ट अबाउट इट इज टुडे they made their product market fit because it was the need of the market, right? So startup क्या है? वो आपकी किसी भी existing business में एक disruption ला देता है, ठीक है? Simple example and then I'll move on to the concerned topic. हम लोगों को राशन की ना एक बड़ी सी लिस्ट बनती थी, और क्या चाहिए और क्या चाहिए, लिखते जाते थे, एक नोटबुक मेंटेन होती थी घर पे, और at the end of the month वो स्लिप फाड़ी जाती थी और जाके किराना शॉप पे दे दी जाती थी। Gradually, most of the women started to work, and in metros it started very early, right? तो metros में अब women को एक प्रॉब्लम आनी शुरू हुई कि कौन लेने जाए, करने जाए, वहीं ब्लिंकिट भाई साहब आ गए। अभी हम किचन में जाते हैं, सोच रहे होते हैं, और ऐसे लगता है यार दरवाजे के बाहर ही खड़े थे कि ये लो सामान ले लो। It's that quick. What did it do? किराना शॉप्स तो पहले भी एग्जिस्ट करती थी ना, but it made the lives of women very easy. So even if I'm here today and my children tell me, अरे ये सामान खत्म है, cook is asking for it, so I say अच्छा कोई बात नहीं, I'll do a Blinkit and I'm sorted. So what did it do? It again eased it out. The travel made easy, the comfort made easy, things coming to you. और अब क्या हुआ, अब ज़ेप्टो भी आ गया, ब्लिंकिट भी आ गया, स्विगी जीनी भी आ गया, स्विगी इंस्टामार्ट आ गया, बिग बास्केट, कंपटीशन बढ़ गया इनटू इकोसिस्टम। अब फिर वही हुआ, द कंज्यूमर इज गेटिंग बेनिफिटेड। हर फास्ट ऐप आपको अब कुछ डिस्काउंट्स दे रही है, कूपन्स दे रही है, 6 to 10 minutes पंच दे रही है, 6 to 10 minutes दे रही है, आपकी लाइफ तो इजी हो रही है, isn't it? And if you've heard this news, I don't know, आप लोग Instagram पे definitely all of you are there. There's an app called First Post. I really recommend all of the girls out here. अगर आपको current affairs से बड़ा, you want to be in touch with what's happening in the world, do follow that page. That's very quick. 1 मिनट में आपको एक news with the detail मिल जाती है। पालकी शर्मा उपाध्याय। It's an app or it's a page? It's a page, sorry. मैं भी सीख रहा हूँ, मैं भी कर रहा हूँ। पालकी शर्मा उपाध्याय है उसकी एंकर, she does it. First Post. And it's a beautiful. I mean now, think like an entrepreneur. ठीक है? यहाँ है कोई जो entrepreneur बनना चाहता है? Oh, what do you want to do, बच्चे? Something in clothing, Clothing, like what? women clothing, like everything. A ethnic boutique, wear, or you want to be a designer, or what is it that you want to do? design. डिजाइनर, गुड। अब ये सोच रहा है बुटीक तो बहुत है, डिजाइनर्स बहुत हैं, हम क्या डिफरेंट करने वाले हैं? ऐसे भी स्टार्टअप्स आते हैं, कहते हैं मैम ऐसा धांसू आइडिया है ना किसी के पास भी नहीं होगा, तो मैं पहले जाके कहती हूँ रिसर्च करके आओ कि किसी के पास क्यों नहीं है। गेटिंग मी? मार्केट में उसकी नीड भी है या नहीं है?
So today we are going to talk about, yes, what is it? What एक element आपकी USP क्या है is very important to me. And if nobody is doing, it's an alarm. Why is nobody doing it? Right? So we're going to talk about understanding the problem-solution fit today, the product-market fit, and integrating the market research into startup planning, of course, the customer segment and the validation techniques I'm going to talk about. Now I want you to think. एक ऐसा product जो आपको बहुत अच्छा लगता है और क्यों? Just think about it. अब मैं पूछने वाली हूँ सबसे. कोई भी ऐसा product, it could be a cosmetic, it could be something related to food, it could be something related to travel, anything. एक product जो आपको बहुत अच्छा लगता है. मैम सारों को एक प्रोडक्ट बड़ा अच्छा लगता है। कौन सा बोल बताओ कौन सा प्रोडक्ट अच्छा लगता है? मैंने कहा था हम बातें करेंगे, नहीं तो फिर तो ये मैं ही बोलती जाऊंगी। नहीं इन्होंने मैम मेरे को प्रॉमिस किया है तो बातें करने वाले हैं। टीचर्स के आंसर्स रेडी हैं। I should start with it. नाम बताओ। फोन लैपटॉप अगर मैं कहूँ तो लैपटॉप ओके Artificial green decor. ओह Plant. ग्रेट मैम मुझे बॉडी लॉशन अच्छा लगता है क्योंकि हमारे फेस मतलब हम यूज करते हैं तो हमारे फेस का केयर करते हैं। यूनिवर्सल है लड़की। ऑलराइट और कौन जवाब देने वाला है? व्हाट इज इट? मामा आप बताइए। Plants. प्लांट्स You should tell them. Jackets. The Let's start up also. Yeah, I'm coming It's to very that. interesting. You'll be amazed to listen. Jackets. Okay. Plants के ऊपर Ma'am. because you said plants के ऊपर. Bags. So Bags. very amazing startup is coming. साड़ी वाह मेरी साड़ी तो अच्छी लगती है बस वो पहनने की मुझे लगता है मैं गिरना चाहूँ ओके सो वैसे ऐसे हुआ भी था हमारा इवेंट था and I fell down and फिर मैं 15 दिन से चलते रही थी Now there is a solution आपको stitch That's what I'm doing now सिर्फ हो जाएंगे आपकी आप बताइए अब आपको कितनी लाइफ सिंपल होती जा रही है isn't it now transitioning to product market fit market को क्या चाहिए ensuring that your product is solving that problem for a stable market Zomato is going to live for years it's there it's a part of our system now हम नहीं रह सकते ठीक है पहले कोई गेस्ट आते थे तो क्या होता था अरे यार तूने क्या बनाया थोड़ा सा भेज अभी तो मैं ऑफिस से आ रही हूँ गेस्ट आ रहे हैं अब क्या होता है कुछ नहीं चाहिए Zomato कर लिया डिलीवरी आ गई so it's become a part of our system and it's gonna stay it is stable very important that how does this PMF which is a product market fit occurs this product market fit only occurs when a startup develops that kind of a product that effectively meets the need or the requirement or I should say the want of a large audience right कितनी सारी चीजों में डिस्ट्रप्शन आया टैक्सीज तो पहले भी थी ना ब्लैक एंड येलो टैक्सीज मिलती थी ओला उबर ने क्या किया डिस्ट्रप्शन लेकर आए ना घर बैठे बैठे 5 मिनट में आ रही है ओला उबर के बाद एक और ऐप आई कैब आई अगर दिल्ली में आप लोग गए हो तो आपने देखा होगा ब्लू स्मार्ट करके कैब्स हैं देखिए किसी ने ब्लू स्मार्ट कैब्स जो हैं वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं जो ओला आपसे उबर आपसे 1000 रुपीज चार्ज कर रहा है वही आपसे 500 लेगा और इलेक्ट्रिक व्हीकल है पोल्यूशन फ्री है पीपल आर प्रेफरिंग दिस दैट्स अ स्टार्टअप द फाउंडर इज मिस्टर अनमोल जग्गी और वो हमारा स्टार्टअप है इट स्टार्टेड विद अस and it's a multi-million dollar company now it's a unicorn now right हमारे कुछ स्टार्टअप्स हैं जो शार्क टैंक तक पहुंचे उनमें से एक है होमवर्सिटी ने क्या किया सॉल्यूशन फाइंड आउट किया बहुत सारे बच्चे सो लेट्स से हमारे कैंपस में 17,000 बच्चे हैं सो 17,000 बच्चों में से मैक्सिमम 70% तो शायद बाहर से ही आते हैं 70-75% बच्चे हमारे बाहर से आते हैं दिल्ली गुड़गांव नोएडा all across the country and you know प्रॉब्लम सॉल्व करना है कि हॉस्टल तो है पिक्चर्स तो बड़ी अच्छी डाली है लेकिन जब हम जाते हैं it doesn't fit बहुत एक्सपेंसिव करके डाला हुआ है doesn't fit the pocket what did he do he created an e-commerce platform where hostel living made easier
he got a funding of 2.5 CR. He's working in Bangalore now, one of our startups. So आप solutions क्या दे रहे हो? Stable solution है, और ये solution उसने Start University से किया, and today it's across the country. He's working in Bangalore for such hostels now. तो आपका कितना solution market fit है, ये देखना बहुत बहुत जरूरी है. Product को adopt कितनी easily करते हैं, strong adoption कितना है इसका, right? I'm going to talk about somebody who everybody knows in this hall. Have you heard of Falguni Nayyar? Yes. कौन है फाल्गुनी नैयर? नायका के प्रोडक्ट सब खरीदते हैं, सबके पास ऐप भी होगी. नायका फाउंडर. नायका ने क्या किया? कॉस्मेटिक्स नए तरीके से बना दिए, इसलिए वो इंडस्ट्री बन गई, यूनिकॉर्न बन गए. क्या किया? क्या किया? नायका ने क्या किया? है क्या नहीं क्या? घर बैठे बैठे सबके पास कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स आ सकते हैं. घर बैठे बैठे ही कॉस्मेटिक वो तो प्रोडक्ट. अमेज़न से भी आ सकते थे. और चका क्वेश्चन ठीक है, वो तो अमेज़न पे भी आता है. हाँ, मिनीज ऑनलाइन. भी गिफ्ट करते हैं. सॉरी, मिनीज देते हैं वो साथ. मिनीज देते हैं साथ में. और क्या क्या दोबारा बताओ? डिस्काउंट्स भी देते हैं. डिस्काउंट्स भी देते हैं. All the products are just on the platform. Yes. The biggest thing is what she did was सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स को एक प्लेटफॉर्म पे लेकर आई, एक ई-कॉमर्स बना दिया. You asked for MAC, you asked for Huda Beauty, you asked for Lakme, you asked for Maybelline, you asked for Revlon. जितने ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलना शुरू हो गए. Above that घर बैठे बैठे आना शुरू हो गए. Above that you were getting those minis, you were getting those discounts, you were getting all the schemes. हर मतलब मुझे लगता है कि अभी खरीद लेती फिर ऑफर आए ना आए. Now I've become used to it. क्रिसमस पे भी ऑफर आ जाएगी, दिवाली पे भी ऑफर आ जाएगी, वैलेंटाइंस डे पे भी ऑफर आ जाएगी. तो आपके पास ऑफर्स आती रहेंगी. 12 months वही प्रोडक्ट्स जो आपको इतने एक्सपेंसिव मिलते थे आज आपको डिस्काउंटेड रेट्स पे मिलके becomes pocket friendly. तो स्ट्रॉन्ग अडॉप्शन होगा ना उसका प्रोडक्ट का. So that's how you've got to think about it. आपको पता है कितनी वैल्यूएशन है इस टाइम इस कंपनी की? IPO खुलने वाला था बीच में ना. IPO निकलेगा मैम इसका वेरी सून. $450 crores US dollars. So I was just checking 2020 तक में they have मतलब like 2020 they have around 3,000 brands Yeah. and more than 3 lakh products. Beauty products especially. So beauty segment. So your revenue or your engagement metrics they indicate demand. Demand होगी तो आपका प्रोडक्ट चलेगा, right? Now what are the research methods I was talking about? आपका रिसर्च शुरू कहाँ से होता है? Surveys, interviews, focus groups, and then later on to the competitor analysis and the industry reports. कितनी नीड है, कितना बिक रहा है ये सामान, बिक भी रहा है या नहीं बिक रहा है, right? ये देखा है सबने? Tesla. टेस्ला क्या किया टेस्ला ने? इसकी फाउंडर कौन है? Elon Musk. एलॉन मस्क. इलेक्ट्रॉनिक लेकर आए हैं. ईवी व्हीकल लेकर आए. और क्या किया? Main. हाँ ये. ऑटोमेटिक. आज मुझे बोलोगे गियर वाली गाड़ी चलाने में मुझे लगा हाय भगवान कितना काम है. Because I have to drive 40 kilometers every day. Sir, ma'am, without drivers. Flat dashboard. Driverless. Yes, unique feature. Driverless. But when driverless takes sometimes what complete No. There is a automated feature, ma'am, now, which is a driverless car. ठीक है? And it can go up to 500 kilometers also now. That's an added feature. Australia. In US. So that's a new feature that's coming up. Okay. Anything else we know about Tesla? Yes. अभी लेटेस्ट एक न्यूज बताती हूँ. सुनीता विलियम्स का नाम सुना है किसी ने? जी मैम. Astronaut. She is an astronaut. कितने दिन के लिए स्पेस में गई थी? अभी she is in space. I hope you know this. ठीक है? कितने months हो गए? Almost 8 months.
शी इज कमिंग बैक ऑन मार्च 19th. एंड ट्रम्प ने प्रेसिडेंट बनने के बाद सबसे पहला काम पता है क्या किया था? एलॉन मस्क को कॉल करके बोला था कि भाई द एस्ट्रोनॉट्स आर स्टक, उनको नीचे डाल. उसको क्यों बोला? गाड़ी थोड़ी भेजेगा उनको लेने. SpaceX. क्या करता है वो? रॉकेट्स बनाते हैं. रॉकेट्स बनाते हैं. SpaceX, राइट, रीयूजेबल्स होते हैं. रीयूजेबल होते हैं. हमें सब पता है एलॉन मस्क के बारे में. एलॉन मस्क को नेक्स्ट फ्यूचर प्रेसिडेंट भी स्पेक्युलेशंस आ रही हैं. बिकॉज ठीक ऑफ है? देयर फ्रेंडशिप. Because of the friendship, right? I'm happy that you're so well aware. Now, Tesla, we're talking about the cars, the innovation that he put in the cars, the robots, the rockets he's making. Elon Musk की एक ऐसी क्वालिटी बता सकते हो as an entrepreneur? I'm talking. As an entrepreneur, एक ऐसी क्वालिटी बता सकते हो जो सब चीजों को सरपास करती है. और रिस्क लेने से डरते नहीं. Exactly. I think we should clap for her. He's not scared to take the risk. हर फेलियर के बाद ये इंसान एक नई ऐसी चीज ला देता है जो हिस्ट्री क्रिएट कर देती है, एक रेवोल्यूशन क्रिएट कर देती है, एक डिसरप्शन क्रिएट कर देती है. पर ये टेस्ला की मार्केट शुरू कैसे हुई थी? ये देखो, आइडेंटिफाइंग द मार्केट नीड. अब हाई एंड प्रोडक्ट बनाना है उसको. वो एक सेकंड के लिए भी नहीं डरता. नौकरी से निकाला गया, वो कहता है ओके, गेट लॉस्ट, आई डू व्हाट आई वांट टू डू. दैट डेयरिंग कि मुझे पता है मार्केट को ये जरूरत है. नाउ व्हेन ही इज, आई होप आपने सुना है कि अब स्पेस टूरिज्म भी होता है. यस मैम. ठीक है, तो वो स्पेस टूरिज्म के लिए यू आर स्पेसिफिकली केप्ट अंडर ट्रेनिंग फॉर सम मंथ्स, वेरी रिगरस ट्रेनिंग्स. और फिर he is offering the first ones to इसके रॉकेट्स जाएंगे. तो मुझे लगता है इसको और भी किसी चीज की जरूरत होगी दुनिया में. Creating livelihood on the Mars. Exactly. So isn't that out of the mind? आज तक हम सोच रहे थे. Now my point is, an entrepreneur always acts on what he is doing rather than only thinking. So what did he do? उसने अपनी कंज्यूमर इनसाइट्स बढ़ा दी. भैया मैं आपको एक इलेक्ट्रिक गाड़ी दे रहा हूँ, पोल्यूशन फ्री दे रहा हूँ, और these वेस्टर्न कंट्रीज आर सो मच पर्टिकुलर अबाउट बीइंग पोल्यूशन फ्री. मैं आपको ये मॉडल्स दूंगा. उसके पास हाई एंड कस्टमर्स हैं. एंड द बेस्ट थिंग दैट ही डिड वाज, आपको कार शोरूम में नहीं जाना. इट वाज डायरेक्ट टू द कंज्यूमर. उसका यूएसपी, कार्स तो आज भी बिक रही हैं, यूएसपी है उसका. इट वाज डायरेक्ट टू द कंप्यूटर. तो D2C सेल्स मॉडल पे काम किया उसने. What did he do? उसने अपनी पूरे आइडिया में टेक को बहुत इन्वॉल्वमेंट दिया. What did he do? He leveraged on the data and he leveraged on the software updates. So that brought that disruption. That brought that, made him Elon Musk, I should say. Right? Zappos सुना है किसी ने? It's a shoe company. इस शू कंपनी ने क्या देखा, लोगों को ऑनलाइन अगर शूज चाहिए तो बड़ी प्रॉब्लम है. इट्स अगेन एन अमेरिकन कंपनी. शूज आपको लेने जाना पड़ता है, फिर हर जगह नहीं मिलते हैं. तो इन्होंने क्या किया? नाउ माय कंसर्न हियर इज द कस्टमर सेगमेंटेशन एंड द वैलिडेशन. हाउ डिड ही गेट दैट वैलिडेशन? वेरी क्लियरली he validated demand without inventory, जो उसका USP था. इसने अपनी इन्वेंट्री की पिक्चर्स क्लिक की एंड अपने कस्टमर्स को भेजनी शुरू की. हमारे पास ऐसे भी शूज हैं, हमारे पास ऐसे भी शूज हैं. प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की कि लोगों के पास नहीं है टाइम, शूज कैसे लेने जाएं, क्योंकि साइज फिटिंग का बहुत इश्यू होता है. देन व्हाट डिड ही डू? ही टेस्टेड द डिमांड बिफोर डूइंग हिज इन्वेंट्री. बहुत लोग, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स यही गलती करते हैं. वो पहले इन्वेंट्री बना लेते हैं, फिर बोलते हैं कि यार अब तो इतनी इन्वेंट्री हो गई तो पैसे खर्च दिए, बिक नहीं रहा. One of the common problems during the early 90s, I should say, if I'm not mistaken. इन्वेंट्री बहुत हो गई. हर एंटरप्रेन्योर को, इनफैक्ट एक्सपोर्टर्स भी इस बात पे बहुत परेशान हो जाते थे, इन्वेंट्री बहुत हो गई. तो उसने उसमें डिसरप्शन लाया. ही एनालाइज्ड द मार्केट रिस्पॉन्स पिक्चर्स के बेसिस पे. सो हमारा एक स्टार्टअप है, अगेन वेरी इंटरेस्टिंग, Zappos से ही मुझे ध्यान आता है.
वो क्या करता है, आपको मान लीजिए शू खरीदना है या टी शर्ट खरीदनी है, तो उसके पास एक सॉफ्टवेयर ऐप उसने बना लिया, ऑलरेडी ही इज इन द मार्केट नाउ, कनेक्टिंग विद Amazon एंड Myntra. वो क्या करता है, आप पिक्चर लेते हो अपने शू की, वैसे स्कैन करता है, स्कैन करके टेल्स यू द साइज ऑफ द शू, व्हिच इज अगेन सॉफ्टवेयर बेस्ड. एंड हम लोगों ने जितनी बार भी ट्राई किया है, इट फिट्स अस. हमने कहा अगर शू गलत आया तो तुम रिस्पॉन्सिबल होगी, नहीं मैम आप ये मंगाओ. एंड इट वर्कड. सो स्केलिंग अप ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडेशन. वो मुझे शू पहले ला के नहीं दे रहा है या बना नहीं रहा है, वो मुझे वैलिडेट करा रहा है कि भाई मैं आपको ये शू दूंगा, ये साइज होगा, आप इसमें से डिजाइन्स पसंद कर लीजिए, आपको ये फिट आएगा. अगेन विद द हेल्प ऑफ टेक. एंड दैट्स व्हाट Zappos also did. It first tested the demand before keeping its inventory. And a very good, businessman quality, an entrepreneur quality. I don't want to invest before I actually know there is a demand for the same. I'll be coming to this, but I want to share one more example before you, before I do this. हमारा एक स्टार्टअप है जिसने देखा कि बहुत सारे मैगी पैकेट्स क्लटर्ड होकर पड़े हैं. उसने वो मैगी पैकेट्स उठाए, उससे उसने डोमैट्स, टेबल मैट्स, जैकेट्स, ये सब क्रिएट किया. अब उसका जो बिजनेस है वो B2G में कन्वर्ट हो गया है, सस्टेनेबल. अब क्या हुआ, हर एग्जीबिशन पे लोगों ने उसके गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए, गवर्नमेंट ने उसके बैग्स खरीदने शुरू कर दिए, और द फोल्डर्स व्हिच दे गिव. आप किसी भी एग्जीबिशन में या कॉन्फ्रेंस में जाते हो तो सस्टेनेबल आजकल यू विल गेट दोस बैग्स एंड यू विल गेट दोस फोल्डर्स. उसका डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट हो गया. अब उस कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे उसका जो ईयरली रेवेन्यू है, इट रोज टू ऑलमोस्ट 2 CR. तो प्रॉब्लम आपको कहीं भी मिलेगी, आपको ये देखने मेरी मार्केट है कहाँ. उसे पता है मैं अगर दुकान लगाकर बेचना शुरू करूंगा लोग नहीं आएंगे. Why? Because people are brand conscious. People will not like to buy the sustainable. बहुत सारे लोग नहीं करेंगे. But he knows जितनी कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, और स्पेसिफिकली आप देखो हर स्टेट में स्टार्टअप कॉन्फ्रेंसेस तो होती ही होती है, और साल में कितनी कॉन्फ्रेंसेस हो जाती है. अगर वो 24 कॉन्फ्रेंस भी कर लेते हैं तो सी हिज रेवेन्यू, where the turnover of people is almost 2000. अगर 2000 भी एक बार B2G उसके पास एक कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है, he sorted, right? So you've got to think whether there is a demand for this product. Solution तो आप बना रहे हैं, ऐसा भी होगा, आपको लगेगा कि मेरे पास एक आइडिया है, अमेजिंग है मैम, बट ट्रस्ट मी कई बार आइडिया हमारे लिए अच्छा हो सकता है, but it's not workable. Then pivot. And it's always good to pivot. बहुत सारे लोगों को मैंने ये भी सुना है, अरे बना लिया, फेलियर हो गया. It's okay. The word fail itself says first attempt in learning. So learn from the market, observe the market, penetrate into the market. देखो आपकी वहाँ पे जरूरत भी है या नहीं है. बहुत सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ. 5 लोग खड़े हैं, ठीक है, एक बिल्कुल लेफ्ट आउट फील कर रहा है, यार मुझे तो यहाँ जरूरत ही नहीं है, मुझे तो यहाँ कोई सुनता ही नहीं है. क्या वो उस ग्रुप का पार्ट होना चाहेगी ये लड़की? नहीं होगी ना. वेरी सिंपल. आप 6 लोगों के बीच में खड़े हो, आप अपना प्रोडक्ट बेच रहे हो, 5 लोगों को जरूरत है, एक को नहीं है, आप एक को हटा के 5 पे फोकस करोगे. एंड सिमिलरली अगर 5 को जरूरत नहीं है तो आप एक के बेसिस पे अपना सामान नहीं बनाओगे. सो ऑलवेज अंडरस्टैंड, अगर आपको कभी भी प्रोडक्ट बनाना है, बेचना है, पहले देखो मेरी मार्केट है या नहीं है, डिमांड है या नहीं है, एंड इज दैट प्रॉब्लम फिटिंग इनटू द सॉल्यूशन दैट आई एम ट्राइंग टू convey here. Is it fitting or not? Make sure of this, right? Any questions? ऐसे मत बोलना, क्वेश्चन नहीं, मुझे लगा मैं अच्छा समझा देती हूँ. Any questions? अभी कितने लोग entrepreneur बनना चाहते हैं? 1. You want to join? You want to? Join with you. Join with me. You're most welcome.
Most welcome. We are always in need of good people. So, I mean, if you have any questions, I'll be happy to answer them. And if you want to, I mean, I can always leave this PPT with ma'am, and she can always share it with you. But again, my humble request to you all is, अगर आप कभी भी मार्केट में उतरते हैं, तो पहले मार्केट को रिसर्च कीजिए, वैलिडेट कीजिए अपना आइडिया, एंड देन मेरे पास एक दो स्टार्टअप्स ऐसे भी आते हैं और हर साल आते हैं. Now even the cooks, there's an app where you can Exactly. can come. There's an app very famous on Instagram, Broomies करके, I think. Broomies ही है, if I'm not mistaken. और भी आया शेफ के नाम से. That's for the cooks. मेट्रो सिटीज. So no idea is छोटा. Please, इसको दिमाग से निकाल दो कि मैं ये आइडिया बोलूंगी तो कोई मुझ पे हंसेगा. पता चले एक दिन आप हंस रहे हो कि भाई मैं तो मल्टी मिलियन कंपनी बन गई, बाकी सब क्या कर रहे हैं. You never know. No idea, I am repeating this, is छोटा. And for giving wings to your ideas, हम कुछ भी चार्ज नहीं कर रहे आपसे, क्योंकि हम एक सेक्शन 8 कंपनी है. आपको हम आपके कॉलेज के साथ मिलकर आपको ये विंग्स देंगे. थोड़ा सा कॉलेज हेल्प करेगा, थोड़ा सा हम हेल्प करेंगे, आपको वो ग्रांट्स हम दे सकते हैं. और मुझे लगता है कि जब when women think, they do it. Who can be a better manager? Managers की बात करें. Absolutely. Than a woman. There is no possibility. I mean, it's a very small example. When I got married into a very traditional family. It was very bureaucratic, that kind of a family. तो हमारे cooks घर पे होते थे, मुझे लगता था यार ये काम भी अगर cooks ने करना, मैं क्या करूँगी? So what did I do? I eventually started doing a cooking course. It was by Government of India. 1 साल का पूरा cooking course था, Mexican, Italian, Chinese, you name it, I can make it now, right? So I did this 1 year का course. Then I started my cooking classes. For 2 years, I did my cooking classes, and I got hundreds of students. तो मुझे लगा यार और कुछ करते हैं. So I was very artistic in passion. I write well and I'm creative that way. That's my kind of EQ and IQ I have. I started with cooking के साथ ही मैंने Crucio Packings का start किया. I started getting orders for entire weddings. 1.5-2 लाख का एक मुझे contract मिलना शुरू हो गया. Now मुझे लगा यार कुछ और भी है कि आवाज तो बाहर जाए कि मैं क्या कर रही हूँ. And I was also teaching. मुझे पैसे की जरूरत नहीं थी उस टाइम. But it was the hunger to be there. कि मुझे कुछ करना है. और my family thought कि यार नहीं, job तो नहीं. Not our cup of tea. So I got married into such a family. मैंने कहा ठीक है, job नहीं करनी, अपना तो कुछ करने दो. And then I started. Yeah. How did you open the company? So ma'am, ATC, you told me that ATC. Actually बच्चों से मैं interact करती हूँ. इनके पास ideas भी होते हैं. समय हो सकता है they are not sharing. They want to do something. उनको वो नहीं मालूम कि कैसे जाना है. इनको NGO खोलना है, trust खोलना है, society खोलनी है, इनको company खोलना चाहते होंगे ये. But how to open it? थोड़ा सा basic. बाकी तो procedure जो भी होगा. so see, first is clarity of thought. One has to be very clear कि मैं करना क्या चाहती हूँ. Is it that I want to open an NGO? क्या मैं NGO करना चाहती हूँ? It's a Section 8 non-profit company. Or I want to get into sales of my product, which is very well done in a private, private limited. Most of the times, अगर आप society या non-profit नहीं करना चाहते हो, I always advise आप private limited कीजिए. Rather than doing an LLP or a partnership, always do a private limited. 2 फायदे. आपको grants जल्दी मिलते हैं because it's kind of a liable factor. Second, आपको investors जल्दी मिलते हैं. So it's a kind of mandate, right? अगर आप Section 8 या NGO कर रहे हैं, मेरे पास ऐसे भी 2-3 startups हैं जो Section 8 कंपनी या NGO करना चाहते हैं. So पहले तो है कि हम purpose define करते हैं कि मुझे अगर ये करना है तो इसका purpose क्या है. For example, if I want to help the women out there, so I invested in one of the NGOs. So I'm an investor also. I invested in one of the NGOs which I'm working with. But मेरा whole soul purpose तब वहाँ पर क्या था? Giving back to the society of what I'm doing in life. So आप first is purpose clear. Second is getting the right mentorship. Very important.
क्या आपको LLP करके फायदा है या प्राइवेट लिमिटेड करके फायदा है, फॉर विच वी अगेन हैव मेंटर्स विद अस, जो आपको ये बता देते हैं कि बेटे आप ये करोगे, अगर प्राइवेट लिमिटेड खोलोगे हमें ये चाहिए, इतना रेवेन्यू चर्न करो, अगर सेक्शन 8 NGO कर रहे हो, एक सिंपल सा प्रोसेस है, देयर इज एन IPL और कॉर्पोरेट लॉयर होते हैं, ठीक है, आप उनसे एक सजेशन दे सकते हो, एक मीटिंग प्लान कर सकते हो कि मेरा ये पर्पस है, दिस इज द काइंड ऑफ स्टार्टअप आई वांट टू डू, आप मुझे बता दीजिए कि मुझे क्या करना चाहिए, तो वो आपको बताते हैं कि अगर आप NGO कर रहे हो तो दिस इज द पेपर वर्क दैट यू नीड टू डू, what is the impact that you are going to leave, they'll help you with that, a very simple process. और किसी को कभी भी IPR, corporate lawyer कि अगर legal entity बनाने में आपको कोई भी problem है, you can always again connect back to us, simply speak to the concerned person, he'll give you a follow up steps कि अगर आप सेक्शन 8 कंपनी कर रहे हैं तो सेक्शन 8 कंपनी में क्या होता है, आपको बहुत सारे इन्वेस्टर्स मिल जाते हैं जो आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या आपको बहुत सारी ग्रांट्स मिलती हैं, गवर्नमेंट ग्रांट्स, NGOs को बहुत सारी ग्रांट्स, एड्स आती हैं, सो दीज एड्स कैन बी नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑल्सो। तो जिस NGO की मैं बात कर रही हूँ उनके पास इस टाइम 12,000 गर्ल्स हैं जो स्किल डेवलपमेंट पे काम कर रही हैं, सो आई एम वन ऑफ देम मेंटर इन सॉफ्ट स्किल्स। सो वो क्या करते हैं, और ट्रस्ट मी जब वो सेशन होते हैं हमारे वहाँ ऑनलाइन सेशन में 1,000-1,200 गर्ल्स बैठती हैं, लॉट ऑफ क्वेश्चंस दे वांट टू रिमूव देयर हिच, तो उनको हम फिर ट्रेन करते हैं। सिमिलरली यू कैन ऑल्सो गेट ट्रेन कि आपको NGO खोलना है तो ये हमारे पास पॉसिबली यू नो देयर इज अ लिटिल पेपर वर्क दैट गोज बिहाइंड इट, पर्पस क्या है, इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस, जस्ट यू हैव गॉट टू मीट द कॉर्पोरेट लॉयर, डोंट फॉल इनटू द ड्यूप आल्सो, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलेंगे अरे हम इतना पैसा ले लेंगे ये होगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, डोंट एंड अप पेइंग टू मच। स्टार्टअप्स को हेल्प करने के लिए गवर्नमेंट कॉर्पोरेट सेक्टर्स भी है जहां पर आपको ऐसे लीगल हेल्प मिल जाती है, तो आप फाइल करेंगे इंटरनेट पर वेरी लो कॉस्ट, सो प्लीज कुछ हाई एंड वकील देखकर ये मत कर लेना कि बहुत हाई एंड CA हाई एंड वकील देखकर आप बहुत पैसा दे रहे हैं, डोंट डू दिस, यू डोंट नीड टू डू दिस, राइट? For having this, I would say, conversation with the students and sharing your journey with us today. Your stories remind us of the incredible potential within each of us to make a difference. And I wish you all the best that you would be able to make a difference. And thank you for inspiring us with your vision and for being the driving force behind this discussion. Thank you, ma'am. Thank you, Principal. Thank you, sir. I'm traveling the only solution वो जो मुझे लखनऊ जाना है, मुझे जैसे कल फोन आया मैंने उसको बोला, मैं कहा that's market fit, do that, and now the sarees the pockets are also there. Okay, मैं बहुत सारे टीचर्स ने ना यहाँ प्लांट्स बोला है, ठीक है, प्लांट की एक अच्छी सी कहानी सुनाती हूँ, I don't know if I narrated it last time or not. मेरे को शायद याद है ना? नहीं, आप कर सकते हो, they are new audience also. अच्छा ये सोचो ये प्लांट है, आपकी स्टडी टेबल पे रखा जाए, अच्छा लगेगा, नहीं रिक्वायर्ड, क्यों ही रखे यार, रोज सफाई का काम बढ़ेगा, Ma'am, it will generate positive energy. it will generate positive energy. Okay. ऐसा ही एक स्टार्टअप मेरे पास आता है और वो थोड़ा सा ना I mean there are 5 co-founders of this startup I'm going to talk about, और one of them is very confident कि मैम ये प्लांट आज से यहीं रहेगा। मैंने कहा हेलो, तुम स्टार्टअप करने आए थे मेरे पास, ये प्लांट यहाँ रहेगा, थैंक यू फॉर द गिफ्ट, स्टार्टअप कहाँ है? कहते मैम 10 दिन तो, I'm really telling you that was his body language, 10 दिन में मैम एक स्टार्टअप आएगा। अच्छा ठीक है, 10 दिन तक वो मेरे पास नहीं आया। 11th डे इतना बड़ा एक बोर्ड लेकर, सारी तारों का ताना बाना जिसको बोलते हैं, और एक छोटा सा मॉनिटर, एंड उसकी टोन में वही बता रही हूँ, मैम अब अंदर आ जाए, आज तो हम अंदर आकर ही रहेंगे। क्या हो गया भाई? I mean that was how he talked. Not that otherwise he's a very gentle man, but he was very confident and very happy that day. He said, मैम आज आपको एक चीज दिखानी है। He put this board here and said, मैम मेरा स्टार्टअप। मैंने कहा ये तारे, ये स्टार्टअप है आपका? हाँ मैम, अब आप देखो इसमें मैजिक होगा। उसने एक छोटा सा पॉट साइज का
एक इक्विपमेंट था, वो इस प्लांटर में लगा दिया और स्क्रीन पर एक रोने वाली स्माइली आनी शुरू हो गई, पानी पानी। ये क्या है? अभी मैंने बताया था आपको। एंड देन पानी दिया and it started smiling. And then now this plant is talking. मैम बहुत देर हो गई, आप खड़े नहीं हुए, चेयर पे बैठे हुए हो, चलो वॉक करके आते हैं। The plant is telling me. So now उस स्टेज से हम टॉकिंग स्टेज पे आ गए। And gradually now मैंने एकदम ऐसे ही बैठे बोला, मैंने कहा तुम एक प्लांट कर रहे हो, साथ में क्या तुम मेरा पूरा गार्डन टेक कर सकते हो? कह रहा मैम ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। Now they are working on making tech gardens, where you will sit in the garden and the flowers will start speaking to you. So very soon then you will see them on the Shark Tank. So you progressed the last time. So now it's a talking. Yeah. They are already in Bangalore. Yeah, they're already in Bangalore, and we very soon hope to see them in the Shark Tank next series. So that's a disruption. Plants तो शुरू से ही थे। Need is. आपकी monotony दूर करने के लिए ये plants को किसी टेक के बेस पे कर दिया। Now, if you've thought, सोचा कुछ प्रोडक्ट, अब बच्चों की एक बात है। सबसे बड़ी क्वेश्चन जो है, देखो क्या अच्छा लगता है उसके बारे में भी अगर हमको सोचना पड़ेगा तो फिर हाई टाइम कि हमें अपने बारे में सोचना चाहिए। Yes, you are right. Exactly. मुझे साड़ी भी अच्छी लगती है, मुझे बैग्स भी अच्छे लगते हैं। I was talking about sari. She's Yeah, doing yeah. a research in fabric. ओह वाओ, I will be working on hemp fabric. हेम फैब्रिक में मेरे पास एक स्टार्टअप है जो हेम करता है। अच्छा ठीक है फिर I'll connect you. I think that will be a great combination. Ideas निकल। Ideas. Collaboration. अभी हम लोगों ने 100 स्टार्टअप आइडियाज लॉन्च किए। नेक्स्ट में 200 लॉन्च करने वाले हैं। बहुत सारे फैब्रिक वाले भी हैं मैम हमारे पास। So आइडिया कहीं से भी जनरेट हो सकता है और जनरेट होता है आपकी सराउंडिंग से, आपकी प्रॉब्लम से। So whenever you see a problem, अभी मैं मुंबई की बात बता रही थी, ट्रैफिक में स्टक थी, 15 मिनट तक कैब नहीं चली, फटाफट उबर का मैसेज आ गया, मैम इज एवरीथिंग ऑल राइट, आर यू सेफ? So that's the one concern, safety concern for women. इतना बड़ा concern है, and this app is solving that. I'll be coming to कैसे और भी बहुत सारी apps हैं which is solving. Dropbox का नाम सुना है हमने? Yes. How many of you have heard? Girls. बच्चों कितने लोगों ने Dropbox सुना है? किसी ने भी नहीं सुना था। किसी ने भी नहीं सुना? अब बच्चों में से किसी ने नहीं सुना। ओके, तो इसकी पहले स्टोरी बता देती हूँ। ड्रू हाउस्टन इसके फाउंडर हैं। He was traveling in a bus, बस में जा रहे थे और उसे याद आया, अरे मैं अपना पेन ड्राइव वगैरह यूएसबी लाना तो भूल गया, अब मैं प्रेजेंटेशन कैसे दूंगा? सिंपल प्रॉब्लम किया, पेन ड्राइव नहीं लाया, कैसे होगा? ने ड्रॉपबॉक्स को बर्थ दिया। उसने कहा क्यों ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहां मैं जब खोलना चाहूं ओपन कर सकूं and I can do the presentation. So the word Dropbox came into being. But the motive of telling you here is Dropbox ने एक बड़ी अच्छी स्कीम यूज की थी। उन्होंने अपना कंप्लीट प्रोडक्ट तैयार नहीं किया था। What did they do? उन्होंने एक वीडियो निकाली और लोगों को बताया कि अगर आप कभी भी अपना पेन ड्राइव यूएसबी कुछ भी भूल जाते हो तो एक ऐप है Dropbox जिसमें आप अपना फाइल्स डाल सकते हो and you can access it. With that video, he got 75,000 clicks and the customer segment all of a sudden got many folds. पहले ही वीडियो पर। After getting that video, he got funds and then he made Dropbox. Now why did I tell you this story? When we think about solving a problem, हम एक चीज जरूर करते हैं and the very first thing which I tell my startups is पहले ये देख कर आओ कि क्या इसकी जरूरत है मार्केट में। Get your idea validated. रिसर्च करो, सर्वेज करो, पता करो ये आइडिया की जरूरत भी है मार्केट में या चाहिए ही नहीं है मुझे। So that's where you understand, is the problem solution that you're creating fit for the market? At the stage where
the startup starts to confirm whether the product is actually required by the consumer, that's where you get to understand कि इसकी need है या नहीं. तो हम क्या करते हैं? We use these key validation techniques. अब Dropbox ने क्या किया? As I told you, उन्होंने एक explainer video निकाली. Explainer video के बाद उन्होंने देखा 75,000 sign-ups हो गए overnight. And then taking that feedback in the loop, it created its product. So अब इसमें क्या हो गया? अगर 75,000 plus sign-ups overnight हो रहे हैं, उतना ही feedback उसको मिल रहा है, तो उसका product definitely अच्छा बनेगा. Because it's working on the feedback. Paytm का नाम सुना है हमने? Paytm कैसे start हुआ था? पता है ना? कि नहीं पता? It started कि आपके मोबाइल का बिल क्लियर हो जाएगा. ठीक है? Paytm ने एक और चीज की. टॉफी मार्केट सुनी है ना हमने? क्या होती है टॉफी मार्केट? जिसमें टॉफीज बेचते हैं? नहीं? क्या होती है? ठीक है. आपका बिल एक शॉप पे बना 98 रुपीज, वो आपको बोलेगा ये भाई 2 रुपए तो है नहीं, खोले टॉफी ले जा. ठीक है? एक दिन में कितनी टॉफीज बेच देगा एक शॉपकीपर? पेटीएम ने टॉफी मार्केट को खा लिया. शार्क. Now if you have 98 rupees, you'll scan it, you'll just pay 98 rupees, you will not get a toffee. So all of a sudden, that disruption ate up the toffee industry. That evolvement from only doing a mobile payment और अब आपके electricity bills और आपका scan और आपका हर solution है Paytm GPay पे. Is that right? So what did Paytm do? It did not stop. Paytm feedback लेता रहा. And on that feedback, in that loop, it kept on increasing its services to the consumer and became a proper problem solution fit for all of us. Right? Similarly, कितने लोगों के साथ ये होता है? I always misplace my keys. कितने लोगों से? मेरे साथ तो 99% होता है. तो मेरे हस्बैंड 2 चाबी एक्स्ट्रा बनवा के रखते हैं कि पता है जब नहीं मिलेगी तो फाइनली अंदर से एक निकाल के देनी पड़ेगी, जब तक तीसरी चाबी नहीं गुम जाती सब ठीक रहता है. कितने लोगों के साथ होता है कि सच में चाबी गुम जाती है? ड्रॉअर की तो रिमोट्स लगा रखे हैं. Exactly. You found that solution, ma'am, right? हम कैसे रिमोट? छोटी सी रिमोट Sensors. सेंसर्स आते आपके हैं. फोन में उसको ऐप डाउनलोड होती है सर. Yeah. आपकी जहाँ भी Find key your हो, product. you just रिंग करते हो तो वो रिंग. आपका स्पेक्स रह जाता है, उस पे भी रिमोट लगा देगा. आपके स्पेक्स, आपके कीज, ये छोटी-छोटी चीजें हैं. हमारी ये चीजें बहुत जल्दी मिसप्लेस होती है. तो चीजें कहीं भी रखी जाती हैं. ठीक है? मार्केट में क्या निकाला? सेंसर्स निकाल दिए. हर चीज के साथ सेंसर आ गया. आपका ऐप, आपका मोबाइल इज कनेक्टेड टू द सेंसर. आप पता लगा सकते हैं चीज कहाँ है. आई थिंक इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता. आपको एक और इंटरेस्टिंग स्टार्टअप की बात बताती हूँ. कितने लोग ऐसे सोचते हैं कि अलमीराज में हम कपड़े रखते हैं लेकिन पहनने के टाइम पे कुछ नहीं मिलता? Genuine common problem. Let's raise our hands. How honest we are. All ladies. ठीक है? या फिर आपको पता है? 3-4 बार पहन ली वो दोबारा नहीं पहनी. नहीं, मैं ये कोट बहुत बार पहन चुकी हूँ. So, जनरली हमारे पास क्या होता है कि कुछ है ही नहीं पहनने को. अरे मेरी रेड साड़ी कहीं रखी थी, पता नहीं कहाँ रखी है. कौन से बेड में डाल दी, कौन से ट्रक में डाल दी, कौन से अलमीरा में डाल दी, कहाँ पैक करके रखी है. ऐसा होता है? अग्री? सबके साथ? अगर मैं ऐसा एक स्टार्टअप लाऊं जो आपको ये बता दे कि आपकी ये चीज वहां रखी है और आपको ये बता दे कि भाई इस ड्रेस के साथ ये कॉम्बिनेशन भी बन सकता है, ये फुटवेयर भी डाल सकते हो, आपका कंप्लीट लुक चेंज हो जाएगा. क्या वो आप डाउनलोड करना चाहोगे? हाउ मेनी ऑफ यू विल डाउनलोड इट? ऑनेस्टली हाथ खड़े करना. सब लोग, राइट? एनीहाउ, आई एम वर्किंग ऑन दैट स्टार्टअप. बहुत जल्दी मार्केट में देखोगे. So me and my co-founder, we are working on this startup which is going to solve the wardrobe solutions. Now how did this? वो मुझे ये बोलते हैं, मैम ये आइडिया किसी ने नहीं बनाया,
और एक बार तो एक बड़ी अच्छी पता नहीं कौन सा मुझे वर्ड सिखा के गया, ताबड़तोड़ आइडिया। तो मुझे भी वर्ड उसी दिन पता चला था। मैंने कहा उसका मतलब क्या होता है? कहते धासु मैम। मैंने कहा ठीक है। उसने 2 लाख इन्वेस्ट भी किए, बहुत मना करने के बाद भी। कहते मैम मैं करके दिखाऊंगा। 1.5 साल बताया, कह रहे मैम वो चला नहीं, कुछ और सोचे। डोंट डू दिस टू योरसेल्फ, इट्स हार्ड अर्न मनी। और स्टार्टअप्स के पास सबसे पहले पैसे की ही कमी होती है। Until and unless you are good to be bootstrapped. I mean, if you want. So my first startup is a bootstrap company. I do not need funding from anywhere. But my second startup, which I'm talking about, the styling of the wardrobes, we were gonna get funded. So it's okay, right? और trust करो, कई बार इतने अच्छे exits मिलते हैं ना आप लोगों को कि अच्छी खासी CRs में आपकी valuation हो जाती है. And मुश्किल नहीं है, easy भी नहीं है. It's not a one-day task. Patience, perseverance, risk-taking ability, that confidence, that decision-making. Your persona has to be very strong to be an entrepreneur. But it's not कि हो ही नहीं सकता. हम जैसे ही लोग उठ के बनाते हैं कोई startup, right? So good luck to you, and I really hope that I see a lot of women entrepreneurs here. Thank you. Have they gone through queries, ma'am? बच्चों कोई in case there is any query, कोई question है you want to ask? जो आप कह रहे हैं रिसर्च करें, रिसर्च कैसे करें, कहाँ करें, कितने मार्केट को एड्रेस करती हो? That's a very good question, ma'am. You can always connect me on LinkedIn. I'm very active on LinkedIn. That's my go-to profile, right? And I hope that you all are also LinkedIn. और अगर नहीं हो, तो हो जाना. Because चाहे आप entrepreneur बने या आप एक अच्छे professional बने, this is one thing you will require. ठीक है? Yes, ma'am. Coming to your question, ma'am, research. You will have to find out. You will have to tap that area where you think. Let's say आप एक नायका जैसा प्रोडक्ट सोचते हैं माइंड में, तो आपका जो प्रोडक्ट है that's women centric. आपके पास एक पूरा कॉलेज एटमॉस्फेयर है wherein you can do your service. You can always get back to other women communities. बहुत सारी women communities हैं जो इसमें हेल्प करती हैं आपको रिसर्च करने में, वैलिडेट करने में. The bigger the thrust, the area of the research is, the more validation you get. For example, social media का यूज करना है. Right? आप अपना कुछ भी आपका प्रोडक्ट है that you want to bring into the market, you could just do a podcast, or you could just create a reel. ऐसा हो तो कैसा होगा? That's again a feedback that's coming to you. Put it on LinkedIn. So जब हम ये स्टाइल में हमने ये जो wardrobe वाला solution स्टार्ट किया, तो हम लोगों ने रिसर्च कैसे की थी? I went to West Side, I went to Zudio. तो मैंने हाई एंड ब्रांड्स पिक नहीं किए थे इनिशियली, राइट? एंड देन आई वेंट टू अ फ्यू लोकल शॉप्स इन करोल बाग. आई वेंट टू मुंबई मार्केट, वो उनकी मुझे लोकल वाला मार्केट, कोई मार्केट है ऐसी, मुझे नाम नहीं ध्यान उसका. आई वेंट टू द लोकल मार्केट्स. वुमेन शॉप कर रही हैं, तो ऐसे ही है ना, मैंने बात शुरू की किसी शॉपकीपर से, कितना अच्छा होता है ना, हमें ये पता होता है, यू नो 2-3 वुमेन, हाँ ऐसा हो सकता है. That's how we researched and surveyed. Then I put a few posts on the Instagram. Then I put a few posts on the LinkedIn. So gradually responses आने शुरू हो गए. My local community. So wherever. all the methods. Yeah. Use all your source resources. स्वलिन मैम, थोड़ा सा हम ये सोच रहे थे कि लाइक हम भी कर सकते हैं. जैसे course. यमुनानगर में एक प्रॉब्लम आती है यहाँ पर, जैसे लाइक कारपेंटर, ये वो जो भी है, जैसे अर्बन क्लैब टाइप उसका, तो हम यमुनानगर के लिए और आसपास के एरियाज के लिए वो चीजें कर सकते हैं. Absolutely, उस तरह की क्लैब हम Absolutely. That ecosystem आप create करते हैं. ममता आफ्टर सम टाइम हम इस पे काम करेंगे. For sure, that's a good idea. अभी I mean, see, you become observant with time. बच्चों अभी कल से मैं यहाँ हूँ, आपस में बात मत करो. देखो Listen to ma'am. यहाँ पर Very important. बहुत सारी कार्स दिख रही है, पर यहाँ कैब कल्चर अभी नहीं आया. कैब इज नॉट देयर. नहीं है ना, यहाँ पर कैब्स नहीं है. वैसे तो सुखी हो आप. अच्छा, ब्लैंकेट भी नहीं है. नहीं, एक है वो ब्लाब्ला यहाँ पर होता है. ब्लाब्ला इज The sharing ride. The sharing ride. और जो एक और प्रॉब्लम आ रही है वो ये है कि
कारें इधर उधर खड़ी हैं, कोई हमारे पास Parking. पार्किंग प्रॉब्लम इज नाउ प्रॉब्लम इज एक मेजर इशू जो क्लास की गर्ल्स के साथ आते हैं, बच्चे आने के लिए सेफ्टी फील नहीं करते, हाँ ऑटो नहीं मिलते। एग्जैक्टली, तभी मैं वो सेफ्टी वाला पॉइंट बता रही थी। मेड की भी बड़ी प्रॉब्लम है, मेड्स नहीं मिलती हैं। That's a very common problem. हम यमुनानगर के लिए वैसी है। उसने ये ना शुरू किया है हाँ, ये प्रॉब्लम सबकी है, तो कोई इसका भी सॉल्यूशन होना चाहिए। उसकी फर्स्ट उसकी सैलरी ये सब जगह है, ये दिल्ली वगैरह सब में Delhi, in metros it is very common. Dehradun it's become very common. Earlier, if I had to hire somebody as a full timer, तो मुझे दिल्ली से बुलवाना पड़ता था। फिर वो दिल्ली अपनी यहाँ एडजस्ट नहीं होती थी। अरे मेरा दोस्त तो वहाँ है और मैं यहाँ बैठा हूँ, मुझे नहीं काम करना। बेटा प्लीज मेंशन द डिटेल्स क्लियरली, क्योंकि अटेंडेंस भी काउंट होती बस है। नहीं चलेगी, बच्चा नहीं आता। Exactly. तो बच्चे Attendance को का भी बस एक extra का होगा। मैंने कहा नहीं, बस भी है, ड्राइवर भी है। और कोई Connect कराना। And that can happen. So now if they have to start, तो ये start हो सकता है एक WhatsApp community से. As simple as that. मैम शायद कोई टेक्नोलॉजी में अच्छा नहीं होगा, कोई मार्केटर एक टीम होनी चाहिए। नहीं मैम, मैं वही कह रही हूँ ना, to start with. डायरेक्शन चाहिए कि हम उस तरह WhatsApp कम्युनिटी, WhatsApp सबके पास है ना, बच्चों के पास एक WhatsApp कम्युनिटी बन सकती है। एक WhatsApp कम्युनिटी में आपके साथ लड़कियां जुड़ती चली जाएंगी, उसमें से कोई ऐसी अच्छी होगी जो टेक जानती होगी, I mean even if थोड़ा बहुत, ठीक है, we can always offer help from our interns. Yes. हम आपकी ऐसे हेल्प कर सकते हैं। आप अगर हमारे साथ जुड़ते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, हम आपको ये कह सकते हैं कि हम आपको एक टेक बेस्ड एक अच्छा बंदा दे रहे हैं, हम आपको मेंटर भी दे सकते हैं जो टेक में एक्सपर्ट है, which are subject matter experts. मेरे पास इस टाइम 50 लोगों का पूल है जो आपको टेक में, मार्केटिंग में, मे बी आपका बिजनेस मॉडल बनाने में हेल्प कर सकते हैं। सो इट विल नेवर बी अ वन पर्सन फोर्स। कभी भी स्टार्टअप करना है, इनफैक्ट मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि अकेले से अच्छा है आप अपने साथ एक को-फाउंडर लेके चलें, एंड देन यू हैव अ गुड टीम टू वर्क ऑन इट। और ये टीम इनिशियली आपके इंटर्न्स हो सकते हैं, एंड दीज इंटर्न्स विल नॉट चार्ज ऑल्सो मच। यहाँ से आप ग्रांट्स उठा सकते हैं। आप एक चीज पता कर सकते हैं मैम, आइडिएशन स्टेज पे ना बहुत सारी ग्रांट्स हैं। सो स्टार्टअप इंडिया सीड फंड है जो आइडिएशन स्टेज से आता है, आप वो पिक कर सकते हैं। देन यू हैव स्टार्टअप हरियाणा से, मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता, आई थिंक मैम ज्यादा क्लियरली बता पाए, आई थिंक 3 लाख की या 2.5 लाख की कुछ ग्रांट है। जैसे स्टार्टअप उत्तराखंड में मैं एक वुमन एंटरप्रेन्योर को 10 लाख की ग्रांट दिलवा सकती हूँ। 10 लाख की ग्रांट व्हिच मींस I am not asking anything in return. Equity basis नहीं है। मैम 10 to 20 लाख हो गया MSMEs के लिए। This is for Haryana initiative ना? Yes. Oh great. So मैम इसका बजट में भी है 10 to 20 बजट में तो इस बार तो बहुत ह्यूज है। स्टार्टअप में आप ये मत सोचो मुझे अपना पैसा लगाना है। मैंने आपको अपना सेकंड स्टार्टअप बताया। Trust me, I have not invested even a single penny till date. Take the grants from the government and women focused तो बहुत सारी grants हैं, बहुत सारे hubs हैं, We Start Hub है, Shiros है, then women led incubators हैं, you can connect with any of them. अटल इनोवेशन मिशन, so हमारे पास अटल इनोवेशन मिशन है जिसमें हमारे पास 5 CR की ग्रांट है। उसकी क्या रिक्वायरमेंट होती है मैम? सो उसमें मैम मैं आपसे कुछ फॉर्मेलिटीज लूंगी। क्या आइडिएशन स्टेज पे हैं आप लोग, क्या बिल्ड करना चाहते हैं आप लोग, कब तक प्रोटोटाइप बिल्ड कर पाओगे, मुझसे क्या हेल्प चाहिए, बिकॉज वो सोशल इम्पैक्ट के जो होते हैं ना स्टार्टअप्स, उनको बहुत हेल्प करते हैं हम लोग। There's a question. दैट इज अटल इनोवेशन मिशन के अंडर बहुत आता है वो चीज। She's asking कि अगर ब्यूटी से रिलेटेड मेरे को लोकल यूनान में नगर में स्टार्ट करना है रिगार्डिंग मेकअप, तो उसके लिए मैं क्या टेक का सपोर्ट ले सकती हूँ? एग्जैक्टली क्या है, मतलब प्रोडक्ट्स लाने हैं, लॉन्च करने हैं, या More into makeup. makeup. So you want to give that makeups to the people. Makeup करके देंगे आप लोगों को? नहीं मतलब मैं करना चाहती, मेरे को मतलब इसमें ना स्टार्टअप करना है। स्टार्टअप करने मेकअप प्रोडक्ट्स को लेकर। तो बच्चे वही बात है, यमुनानगर में है या नहीं है, पहले तो ये रिसर्च करो, ठीक है। यमुनानगर में अगर नहीं है तो स्टार्ट विद अ लिटिल कम्युनिटी, ठीक है। आप अपने आसपास कितने लोगों को चाहिए है, आप कहाँ से अच्छे से प्रोक्योर कर सकते हो ऑन द लेसर रेट्स। यमुनानगर में इतने लेस रेट्स में कोई दे पा रहा है या नहीं दे पा रहा है, आप
घर तक पहुंचा रहे हो, फिर वही बात है नायका को बीट करना। गेटिंग माई पॉइंट? बट आप उसमें कुछ ऐसा एक यूनिक चीज डाल दो जो नायका नहीं कर रहा, दैट विल बी योर यूएसपी। ठीक है, तो वो यूएसपी पे आप काम कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने उनको बोला कि ये नायका के प्रोडक्ट्स इतने पे जाते हैं, प्लस इसके साथ इफ एनीबॉडी लेट्स से वांट्स होम में ही थ्रेडिंग चाहिए, प्रोडक्ट भी आ जाएगा, करने वाला भी आ जाएगा। I mean, it's just an idea. I'm also just thinking about the idea, and we can always talk about it. आप उसमें क्या एक ऐसी एडिशन कर सकते हैं, मे बी जो भी हम प्रोडक्ट्स ले रहे हैं उस पे आप डिस्काउंट देते जा रहे हैं और उसके बाद आपके इतने प्रोडक्ट्स के इतने पॉइंट्स हो गए इनिशियली टू स्टार्ट विद, नाउ यू कैन ऑर्डर दिस फॉर फ्री बिकॉज आपके इतने पॉइंट्स हो चुके हैं। So anything which is an add-on to what existing company is doing, वो एक disruption ला सकता है, वो आपकी कंपनी को ला सकता है। And even if you're working on the Nykaa terms, it's okay, क्या पता कल को क्या USP ले आओ। क्योंकि पैरेलल कंपटीशन तो सर्वाइव करता है ना। Make my trip है, Ease my trip है, Go my Vivo है, सब यही तो कर रहे हैं, टिकटिंग कर रहे हैं, हमारे ट्रिप्स प्लान कर रहे हैं। Make my trip, the other day, I mean both my children were thinking भाई अब बहुत हो गया, पूरे साल हम कहीं नहीं गए, दोनों के बोझ से, तो they said ना मम्मा हम कहीं घूमने चलते हैं। जैसे मैंने Make my trip खोला, साथ में आ गया, we can send you on vacation on EMI plans as well. Doesn't it become affordable? अब क्यों इतना रश है एयरपोर्ट्स पे? So because it's they are trying to give the best. कोई और क्वेश्चन बेटा? I think somebody else was asking question. सर ये 3 स्टूडेंट्स बहुत एक्साइटेड हाँ, होते हैं बेटा। क्लास में, बट अभी